रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी जो डिस्कशन इससे पहले चल रही थी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन के ऊपर, उस ऑटो कोरिलेशन की ही डिस्कशन को हमने थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस करना है और कुछ एरियाज जो कि उसमें रिमेनिंग हैं हम उसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते हैं। So today's mandate of the lecture is that how we can come up with the identification of the problem of autocorrelation. कि autocorrelation का अगर मसला मौजूद होता है तो how we can go for that the testing of that problem of autocorrelation. But prior to go into the details of this concept of Durbin-Watson test, I would like to have little bit recap of the previous discussion that we had on the topic of autocorrelation. So we started our discussion by introducing basic concepts of autocorrelation, that what actually the autocorrelation is, and we discussed at that time that there should be no relationship between the error terms of one time period with the error term of the another time period, specifically in context of time series data. So if this type of relationship is present, so that would be the indicator of problem of autocorrelation. And if this problem is not present in the data, so we may assume that there is no problem of autocorrelation in that particular data. In context of the examples, financial point of view से market efficiency का ये वो concept है that is a true reflection of the concept of autocorrelation. अगर markets weak form में efficient हैं, semi strong form में या strong form में efficient हैं, तो market efficiency की assessment के लिए how this concept of autocorrelation is supportive and helpful to us, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा example के एतबार से बात की थी. And then followed by the second area that was related with the concept of autocorrelation, and that was the major reasons and causes that may cause the problem of autocorrelation. तो उसमें हमने 8 major areas के ऊपर बात की थी, starting from inertia till non-stationarity of the underlying data. तो ये वो reasons थी. After having identification of this problem, अगर हमें पता चला that there is no problem, then no problem at all. But if there is a problem, then how can we detect the problem? So for that purpose, detection techniques that we have covered in our last sessions was, first one was runs test, कि हम पॉजिटिव रन्स को देखते थे, हम नेगेटिव रन्स को देखते थे और फिर एक डेडिकेटेड फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने जो है उसकी कैलकुलेशंस की और फिर उसको एक इंटरवल के अंदर देखा और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने टेबुलेटेड वैल्यूज को भी देखा, फिर हमने उस टेबल की वैल्यूज से भी और फिर अकॉर्डिंगली हमने उस जी टेबल को देख के फिर हमने फैसला करने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ वन एग्जांपल that was probably example 12.4 table of the गुजराती बुक. तो हमने उसकी बुनियाद पर रन्स टेस्ट को रन करके उससे जो है वो कॉन्सेप्ट्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी. सो दैट वाज द इंटायर डिस्कशन दैट वाज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, जो कि हमने पिछले 2 सेशंस में कवर करने की कोशिश की. आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डर्बन-वाटसन टेस्ट, और ये भी डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है. सो दिस टेस्ट इज basically used for the purpose of testing of the autocorrelation of the autocorrelation issue, कि डेटा के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ऑफ ऑटोकोरिलेशन मौजूद है या नहीं, इसका जवाब जो है वो हमें डर्बन-वाटसन से मिलता है. सो टू स्टार्ट विद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस हैं जो कि हमने समझनी है ऑफ दिस डर्बन-वाटसन टेस्ट, कि जब हम डर्बन-वाटसन टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऑटो कोरिलेशन के मसले को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वी हैव टू मेक इट श्योर कि हमने किन अजम्पशंस के ऊपर जो है वो डर्बन-वाटसन टेस्ट को अप्लाई करना है. सो वन मेजर अजम्पशन इज दैट रिग्रेशन मॉडल शुड इंक्लूड इंटरसेप्टर. वो कैसे कि हम ये एक रिग्रेशन है जो ये लिखी गई है फॉर एग्जांपल. सो इस रिग्रेशन में आप देखें
इस रिग्रेशन में हमें बीटा 1 इज इंटरसेप्ट बेसिकली, सो ये इंटरसेप्ट मौजूद होना चाहिए. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. इफ वी आर इंटरेस्टेड टू हैव रिपोर्टिंग ऑफ ऑटो कोरिलेशन through the technique of Durbin-Watson test, so in that case what we have to do is that we have to go for रनिंग ए रिग्रेशन जिसके अंदर इंटरसेप्टर मौजूद हो. फॉर एग्जांपल अगर हमारे अंडरलाइंग डेटा के अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है दैट देयर इज रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन व्हिच मींस के इंटरसेप्ट टर्म इज मिसिंग आउट ऑफ इट. सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू दैट वी हैव टू गो फॉर रनिंग रिग्रेशन विद intercept. This is the first reason or first assumption which states that there should be interceptor which should be present in this regression model, and if it is not present, as in the case of regression through origin, जैसे मैंने कहा अगर regression through origin हो, so it is essential to rerun the regression including the intercept term to obtain the RSS. RSS means residual sum of squares. दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन या कंडीशन या एजम्पशन दैट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो कि एक्स वेरिएबल्स होते हैं आर नॉन स्टोकेस्टिक आर फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पलिंग. ये बिल्कुल वही ओएलएस की बुनियादी एजम्पशन है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स शुड बी फिक्स्ड इन रिपीटेड सैंपल्स. तो ये बिल्कुल उस एजम्पशन को हमने माइंड में रखना है. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एजम्पशन. एंड थर्ड एजम्पशन इज that the disturbance term mu t are generated by first order autoregressive scheme. ये AR1 और AR2 schemes के ऊपर हमने ऑलरेडी जो है वो बात की भी थी लास्ट सेशन में. AR1 में अगर इस तरह ब्रैकेट में लिखता हूं तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑटोरेग्रेसिव टेक्निक या ऑटो रिग्रेसिव जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, अप्रोच बनेगी. सो हमने क्या करना है, हमने इस चीज को श्योर करना है कि हमें ये फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में मिले. ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है, देखें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको अगर नजर आए तो अगर आप देखें म्यू टी जो है, म्यू टी इज बेसिकली राव इंटू म्यू टी माइनस 1 प्लस ई टी एरर टर्म. तो शॉक एक प्रीवियस वैल्यू और फिर उसके साथ प्लस माइनस शॉक. तो आप देखिए t माइनस 1 इज द फर्स्ट लैग. तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम है. व्हाट इफ अगर ये इस तरह से हो कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं कॉपी करता हूं और मैं लिखता हूं म्यू राव म्यू t माइनस 1 और मैं लिख देता हूं बीटा और म्यू t माइनस 1 जो है वो मैं इसी के साथ रहने देता हूं. तो ये t माइनस 2 कर लेता हूं इसको और फिर देन फॉलोड बाय राव t माइनस 1 प्लस एरर टर्म. सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि एरर टर्म जो आज की डेट में रिपोर्ट हो रही है, दिस एरर टर्म इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ error term at second lag and error term at first lag with the intensity of beta and rho respectively for both of these lags, as well as error term or shock that may be associated with it. ये जो सिचुएशन है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम नहीं है, बल्कि ये सेकेंड ऑर्डर AR2 और फर्स्ट ऑर्डर की जगह ये सेकेंड ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम है. इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम जहां पे उसकी प्रोडक्शन जो है या उसका प्रोड्यूस होना इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट लैग, बट सेकेंड के केस में सेकेंड लैग भी शामिल है और फर्स्ट लैग भी शामिल है. तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम. सो ये जो रीजन है जो ये एजम्पशन है वो ये कहती है कि डिस्टर्बेंस टर्म जनरेट हो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम के अकॉर्डिंगली. ये फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम है, इसके अकॉर्डिंगली ये प्रोड्यूस हो. इसके अकॉर्डिंगली अगर ये प्रोड्यूस होगा तो इट मींस हम कौन सी ऑटो कोरिलेशन को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन. हम फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन की बात कर रहे हैं मोर देन
फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन डरबन वाटसन मेजर नहीं करेगा, थर्ड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन डरबन वाटसन मेजर नहीं करेगा। ये जब हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स को डिटेल के साथ इंशाल्लाह टाइम सीरीज डेटा के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम इस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने सिर्फ इतना समझना है कि हम जब डरबन वाटसन के टेस्ट को अप्लाई करते हैं या डरबन वाटसन के थ्रू जो है वो हमने ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करना है, तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है, हमारी assumption ये होगी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम के अकॉर्डिंगली जो है वो जो एरर टर्म है उसका पैटर्न प्रोड्यूस हो। द फोर्थ इंपॉर्टेंट assumption इज दैट एरर टर्म इज assumed टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारी assumption है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। नॉर्मेलिटी टेस्टिंग के लिए जो है वो जार्क बैरा की अप्रोच हमने अपने प्रीवियस सेशंस में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सो एरर टर्म प्रोड्यूस करके रिग्रेशन के मॉडल में उसके ऊपर जार्क बैरा टेस्ट अप्लाई कर लिया जाए तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट assumption of the regression Durbin-Watson approach is that regression model does not include the lag values of dependent variable as one of the explanatory variables। जैसे आपको ये इक्वेशन एक नजर आती है, मैं इस इक्वेशन को जरा कॉपी कर लेता हूँ वर्ड के डॉक्यूमेंट में। देखें ये इक्वेशन है, सॉरी इस इक्वेशन को अगर आप देखें सो इन दिस इक्वेशन हमें नजर आता है y बीटा वन प्लस बीटा टू x2 t प्लस बीटा 3 x3 t एंड लिस्ट गोज ऑन और बीटा के x के t। ये एक से लेके k तक या 1 से लेके n तक सेलेक्टेड नंबर ऑफ जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। बट आप देखिए लैम्डा वाई टी माइनस वन प्लस म्यू टी, वाई टी माइनस वन इज फर्स्ट लैग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई टी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी रिग्रेशन का मॉडल जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ लैग्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो इस केस में वी कैन नॉट गो फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग ऑफ ऑटो कोरिलेशन, वी कैन नॉट गो फॉर ऑटो डर्बन-वाटसन टेस्ट। हम डर्बन-वाटसन टेस्ट को अप्लाई करके ऑटो कोरिलेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट नहीं कर सकते अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लैग्स की फॉर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग इंडिपेंडेंट साइड पे हमें नजर आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी कुछ प्रीवियस वैल्यूज यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। सो इफ दिस सिचुएशन इज प्रेजेंट तो ये भी हमारा जो स्कोप ऑफ डर्बन-वाटसन है उससे बियॉन्ड हो जाएगा। सो दिस इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन। और छठी इंपॉर्टेंट रीजन जो है, देयर आर नो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। मिसिंग ऑब्जर्वेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होगी तो वी हैव टू गो फॉर एडजस्टमेंट एंड वी हैव टू गो फॉर मैनिपुलेशन ऑफ दैट डेटा इन सच अ वे कि हम उन मिसिंग ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली जो है कुछ प्रॉक्सीज आइदर इन द फॉर्म ऑफ एवरेजेस या एनी अदर टेक्निक जो कि हमें स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल लगती है, सिग्निफिकेंट लगती है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग विद द नंबर ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस, तो वो हम डील करें और उसके बाद हम डर्बन-वाटसन की अप्रोच के अकॉर्डिंगली ऑटो कोरिलेशन को टेस्ट करने की कोशिश करें। तो ये हमारी 6 बुनियादी रीजंस हैं। जब ये 6 बुनियादी रीजंस या assumptions फुलफिल हो रही हों, then we can go for testing auto correlation with the help of डर्बन-वाटसन टेस्ट। तो डर्बन-वाटसन टेस्ट जो है वो d की वैल्यू 0 और 4 के दरमियान फॉल करेगी। टू बी ऑन सेफ साइड मैं इंतहाई जेनेरिकली आपको गाइड करता हूं। डर्बन-वाटसन की वैल्यू जो है वो 0 और 4 के बराबर होनी चाहिए। एग्जैक्टली d इज इक्वल टू 2 की वैल्यू का मतलब है नो ऑटो कोरिलेशन। अच्छा, d इज इक्वल टू मोर देन 2 अगर वैल्यू आ जाती है, इट मीन्स that there is an indication of 2 से above ना तो positive auto correlation। d की वैल्यू if less than 2
and is approaching towards 0, और यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं इज मोर देन 2 and is approaching towards 4, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 4 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी 0 ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। नेगेटिव में वैल्यू रिपोर्ट नहीं होती इसकी। सो दिस वुड बी एन इंडिकेशन ऑफ लेस देन 2 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 नेगेटिव। ये आपने माइंड में रखना है कि ये अपोजिट इंडिकेशन होगी। एग्जैक्टली इक्वल टू 2 अगर ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू रिपोर्ट होती है तो इसका मतलब है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। अगर वैल्यू 2 से ज्यादा अप्रोच होती है, रिपोर्ट होती है, और वो 4 की तरफ मूव करती है, वैल्यू हमें मिलती है, इट मींस दैट देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। 2 से बड़ी अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4 तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, और 2 से कम वैल्यू अगर रिपोर्ट होती है और दैट वैल्यू माइट बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, या वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाती है, या 0 और 2 के दरमियान फॉल करती है, तो दिस इज एन इंडिकेशन। मैं 100% गारंटी से नहीं कह रहा, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अब मैं इस इंडिकेशन को कंफर्म कैसे करूंगा, ये हमने थोड़ा सा समझना है। सो व्हाट वी विल डू इज हम चैप्टर 12.4 टेबल के ऊपर चले जाते हैं। मैं OLS रन करता हूँ, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके करता हूँ, तो आप देखिए डर्बन वॉटसन की वैल्यू रिपोर्ट हुई है 0.1122। अब इस assumption को अगर हम देखें तो मैं देख के यहाँ से ये कहता हूँ, अगर वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 रिपोर्ट होती है, इट मींस दैट देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। इफ वैल्यू इज मोर देन 2 एंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4, तो ये 2 से बड़ी वैल्यू तो नहीं है, ये तो 2 से कम है, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 2 एंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, 0 के करीब करीब है, so it means that this is an indication of positive auto correlation। यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि ये एक पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन की रीजन हो सकती है, कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन शायद इसमें प्रेजेंट हो, लेकिन ये एक इंडिकेशन है। हाउ वी कैन गो फॉर कंफर्मिंग दिस आइडिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं टेस्ट के ऊपर, और मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखें ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी मौजूद है और डर्बन वॉटसन की पी वैल्यू भी मौजूद है। नाउ इफ दिस डर्बन वॉटसन पी वैल्यू, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली 0.12209, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको बिल्कुल बराबर नजर आती है, बट दिस डर्बन वॉटसन इज हैविंग हाईली सिग्निफिकेंट पी वैल्यू। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ द पी डर्बन वॉटसन, देखें यहाँ पे सिर्फ डर्बन वॉटसन रिपोर्ट हुआ, इसलिए मैंने कहा अगर जाहिरन देखने में हमें लगे दैट वैल्यू इज लेस देन 2 एंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, जैसा इस केस में हो रहा है, तो इट मींस दैट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। यहां से तो हमें आइडिया हो गया। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज, इस इंडिकेशन को कंफर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने डर्बन वॉटसन की पी वैल्यू देखी, पी वैल्यू मुझे हाईली सिग्निफिकेंट मिलती है। अब रूल ऑफ थंब देखिए, मैंने यहां से कह दिया that this is an indication that the value is approaching towards 0, it means that this is an indication of positive autocorrelation। पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन की इंडिकेशन को कंफर्म करने के लिए मैंने उसकी पी वैल्यू को देखा। वंस वी गॉट सिग्निफिकेंट पी वैल्यू, it means that there is no problem of autocorrelation in data. But if we are having insignificant p-value out of this exercise, insignificant p-value of Durbin-Watson, then it means that this approaching towards 0 and this less than towards 0 is not an indication. This is confirmation that there is a problem of autocorrelation in it. So this is the easiest approach of dealing with problem of autocorrelation once we are having the understanding of the time series data, if we are dealing with it, और फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन को जो है वो हम कैसे टेस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप टेस्ट पे चले जाए ना, तो यहाँ से आपको ये ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट रिपोर्ट करता है, और लैग ऑर्डर फॉर टेस्ट, इसको अगर आप देखें और यहाँ से भी आपको देखिए जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। ब्रूच गॉडफ्रे टेस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन, OLS using observations,
टोटल ऑब्जर्वेशन 14। तो यू हैट इसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को भी रिग्रेस किया और उसके फर्स्ट लैग ऑफ यू हैट को भी रिग्रेस किया। अब देखिए फर्स्ट लैग ऑफ यू हैट जो है वो हाईली टेक्निकली सिग्निफिकेंट है इसके साथ। It means that there is a significant relationship और then followed by all of these assumptions। तो जो कुछ आपको यहाँ से नजर आएगा वही आपको यहाँ से भी कंफर्म होता नजर आता है। So this is the simplest approach of testing autocorrelation। Which type of autocorrelation? First order autocorrelation। तो जो हमने सारी डिस्कशन की मैं उसको रैप अप करता हूँ। डर्बन वॉटसन की 6 बेसिक assumptions हैं जिनको हमने पहले देखना है और उसके बाद हम डर्बन वॉटसन की OLS को रिग्रेस रन करेंगे, आपको डर्बन वॉटसन की वैल्यू रिपोर्ट हो जाएगी। बाय द वे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव कैलकुलेशन ऑफ डर्बन वॉटसन तो आपके पास ये फॉर्मूला है जिसमें आप उसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू हैड टी और माइनस यू हैड टी माइनस 1 का मतलब है प्रीवियस वैल्यू ऑफ यू हैड, और फिर इसी तरह यू हैड स्क्वायर टी वैल्यू। तो ये इसको आप होल स्क्वायर और ये सारी चीजें समेशंस और ये अप्लाई करके डिवाइड कर ले, आप मैनुअली कैलकुलेट कर लें, यू विल कम अप विद द सेम वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिली है इन द फॉर्म ऑफ 0.122 ये वैल्यू। सो ये हमें बिल्कुल मोरलेस यही वैल्यू वहां पे मिलेगी। सो हमने क्या किया, हमने बुनियादी 6 एजम्पशंस जिनमें पहली एजम्पशन थी रिग्रेशन के अंदर इंटरसेप्ट का होना जरूरी है, एक्स की वैल्यूज जो है वो रिपीटेड सैंपल्स में फिक्स होनी चाहिए, देन डिस्टर्बेंस टर्म जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस हो, सेकंड ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव या ऑनवर्ड हायर डिग्री ऑटो रिग्रेसिव स्कीम्स जो है वो कवर नहीं होंगी, एरर टर्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रिग्रेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग वैल्यूज एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल ना हो और मिसिंग ऑब्जर्वेशंस ना हो, तो हमें डी की वैल्यू जो रिपोर्ट होगी यहाँ पे उससे हम ये 3 किस्म की इंडिकेशंस ले सकते हैं। इंडिकेशन नंबर 1 exactly equal to 2 means no autocorrelation, more than 2 means negative autocorrelation की indication, less than 2 means positive autocorrelation की indication, और p value of Durbin-Watson will guide us that how we can go for testing of autocorrelation। So no autocorrelation means no autocorrelation। तो autocorrelation का hypothesis reject होता है तो इसका मतलब होगा autocorrelation है। So this is all about the basic concept of Durbin-Watson test जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। So that is all about this case। इंशाल्लाह in the next session हम onward जो discussion है उसके ऊपर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।